we will try to understand what is exact meaning of significant digits or significant figures in a measurement. If you understand the concept well, you will not require to memorize all the rules as such. If you just try to understand the concept, you will know each and every rule. There will be no need of memorizing any of the rules, and this is what I will try in this video to make you understand what exactly is the meaning of significant figure or significant digit. So, first thing, any measurement that we perform is never perfect. Any measurement that we perform is never perfect. If you ask me to measure the length of this pen, whatever be the precision of my scale, I can never be 100% sure about the value that I get after the measurement. The exact value is known only to the Almighty, right? God only knows what exactly is the length of the pen. We humans, we can try to be very precise, but we can never know the exact value of the length, right? This limitation happens because of many different reasons. So, there is always some uncertainty in any measurement that we do. We never take any measurement to be perfect, and the measured value is always expressed as the best estimate that the experimenter can have plus or minus the uncertainty. If I am an experimenter, I am measuring the length of this pen, then I will try to figure out the best possible estimate of this length using the scale that I am having. I may take 10 measurements, I may average them all, and then I can say that okay, according to me, the best possible length of this pen is 12.8 centimeter, maybe. But am I 100% sure that the length is 12.8? Is there no uncertainty in that 12.8? The answer is no, I am never sure. When I am saying that length of this pen is 12.8, what I am saying is it is according to my best estimate that the length is 12.8, but I am not 100% confident that it is 12.8. It can be 12.7, it can be 12.72 to be very exact, it can be 12.9 also. I am not 100% sure that the length is 12.8. So, any measured value, anything that you measure is always expressed in this fashion. The best estimate that you can give and the amount of uncertainty that is there in your measurement. Now, most of the time, how do we find the best estimate? The best estimate, as I told you, it is average of multiple measurements in most of the cases. I will measure the length of this pen 10 times and take the average of all those figures, and that will be best possible estimate according to me. But the uncertainty depends on many factors. The uncertainty, this thing depends on many factors. Uncertainty in a measurement is decided by precision of the measuring instrument. How precise my scale is, it will decide how much uncertainty could be there in my measurement. Then there are other factors like experimental conditions and the skill of the experimenter. To give you a simple example, if you are using a steel scale, it may be accurate at 20 degrees Celsius temperature, but if the day's temperature is 27 degrees Celsius and you are going to measure the length of your table using that scale, the reading that you get will not be exact. It will have some uncertainty because the experimental conditions are not very conducive, isn't it? So, of course, skill of the experimenter is the most important thing. So, these are the factors basically more or less mota moti which decide the amount of uncertainty. The experimenter himself or herself is the best judge of the uncertainty. Nobody else can say what exactly is the uncertainty in a particular measurement. It is the experimenter who will always decide what is the amount of uncertainty in the value that he has got after measurement. Okay. In some other video, I will talk more about uncertainty and errors. Today's session is basically about significant digits, but significant digits is a kind of reflection of the uncertainty in a particular measurement.
significant digits gives you an idea about the amount of uncertainty that a particular measurement has, right. So, there are certain rules to figure out the significant digits or significant figures in a measurement, and the rule is basically that we report all the digits about which we are certain and the first doubtful digit, right. I will give an example to explain what exactly this means. I have tried to keep this diagram as large as possible, so that all of you can see this very clearly. Here what I am trying to do is, I am trying to measure the length of this pencil using a regular normal scale that you have in your geometry box. Suppose this is the situation, this is what you see. Now, if I ask you what is length of this pencil, many of you, let me first let me guess the answer. It is 6.6, 6.6, 6.7. To me, it appears that length of the pencil is 6.7 centimeter. Many of you might be seeing it as 6.8. Many of you may say that it is 6.6, right. So, there is no certain answer. There is no certain answer. I cannot bet that length is 6.7. I cannot just say that you are always wrong, I am always right, it is 6.7. No, nothing like that. I am also making some type of guess when I am looking at this diagram, right. It is very difficult to find out exactly where the tip of the pencil is. There is always a scope of some error when I take the reading, right. So, if I am sure that length of this particular pencil is 6.7, फिर थोड़ा देखता हूँ, नहीं थोड़ा 6.7 से ज़्यादा है, कम है, I am confused, I am sort of confused. I am very confident that length of the pencil is greater than 6.5, it is greater than 6 centimeter, but I am not having enough confidence about this digit. I am not very confident about the last digit 7, though according to my estimate this is the best value 7, but I am not very confident, I am not 100% confident rather. I cannot say that it is 7, it could be 6, it could be 8, it could be somewhere between 7 and 8 also, who knows. So, this is certain digit, this is certain, I am absolutely sure that this is the right digit, but I am not so sure about this digit, this is doubtful. So, when you are performing a measurement, you are allowed to write all digits about which you are certain and one doubtful digit. That means this is an estimated number, isn't it? This is just an estimate. I am very sure about 6, but I am not 100% sure about the digit 7. It could be 6, it could be 8 as well. So, in physics, in a lab, when you are doing some measurement, how should you express your measured value? You should write all the digits about which you are confident and you are allowed to write one doubtful digit. Here in this case, if a student says that length of this pencil is 6.78 centimeter, then surely he or she is bluffing, isn't it? How can anybody be sure that length is 6.78? Writing this way means you are confident about this digit, you are also sure that it is greater than 6.7. 7 is also a digit about which you are very sure. Only thing is that you are doubtful about 8. This 8 could be 9, it could be 7. So, in this particular situation, it is very difficult to be sure about this digit, then how can you write this digit? And there are wonderful students who can even give their measurement as so many centimeters, thinking that they will get more marks if they write more digits. No, this kind of reporting is not okay. We never do, any sincere student or a scientist will never report his or her measurement like this. The rule is you have to write all certain digits and one uncertain digit. So, here are two digits in this measurement, one is certain, one is doubtful. We say that in this particular measurement of length of the pencil, there are two significant digits or two significant figures. So, in this particular measurement, there are two significant
digits, all digits about which you are sure, and the first doubtful digit that makes significant digit. Significant means they are meaningful digits, isn't it? If I write the measurement like this, actually 4 and 8 are not having any meaning because वो आपने ऐसे ही लिख दिया, वो रीडिंग में आपको समझ में आ नहीं रहा है. They are not significant, they are not meaningful, they are just bluffing, nothing else. So I hope you understand what is meaning of significant digit. Now suppose you are measuring length of the same pencil using a steel bar which has marking at a separation of 10 centimeter. ऐसा स्टील का बार आप अक्सर कपड़ों की दुकान में देखते हो. हाँ, उनके पास एक बड़ी सी रॉड होती है और 10-10 सेंटीमीटर पे ऊपर मार्क्स बना हुआ होता है. यहाँ पे एक मार्क बना हुआ है, यहाँ पे एक मार्क बना हुआ है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर आगे जाके एक और मार्क बना हुआ है. मार्किंग हैज बीन डन एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर. नाउ यू प्लेस योर पेंसिल लाइक दिस and you try to measure the length of this pencil. This is the scale that you are having. You are not having that scale that was there in the previous diagram. This scale is not with you. You are measuring the length of the pencil using that rod. Now what could be your answer? Now can you say that length of this pencil is 6.7 centimeter? Isn't it bluffing? Isn't it bluffing? If I just know that this is 10 centimeter. So what I can do, I can make a reasonable guess ki okay, length appears to be 7 or 8 centimeter maybe. Whether it is exactly 7 or 8, it is very difficult to comprehend. So I will just make a guess which is correct according to me, and I will say that okay, the length of the pencil appears to be 7 centimeter. How can I write 7.2? How can I write 7.2 here? I am not confident about this digit 7 itself. There are no markings on the scale. I do not know exactly whether it is 7 or 8 or 6. So how can I write the next digit? It is just bluffing. So what I will do is I will write 7 centimeter. When I have written only one digit, everybody understands, one who knows physics understands that this is a doubtful digit. In any measurement, you are allowed to write all the certain digits and one doubtful digit. You have written just one digit, means that is a doubtful digit. So this is a doubtful digit, but okay, in this measurement we say that there is only one significant digit. So the way we report our measurement is very important. It is indicative of the precision of our measurement. Length of the pencil being measured using this scale will be written like this, whereas length of the pencil being measured using this scale will be written somewhat like this. So when you say that length of the pencil is 7 centimeter, I understand that you have not used a very good kind of scale. But when you say that length of your pencil is 6.7 centimeter, I assume that you are using at least a scale that is there in your geometry box. If you someday say that length of this pencil is this much, I will understand that okay, maybe you have used something like vernier. So the number of digits that you write, it indicates how precisely you have measured that particular thing, that particular physical quantity. Okay. So there are certain rules following which you have to decide the number of significant digits in a measurement. Let us learn those rules. Now you will understand meaning of each and every rule, right? The first rule is all non-zero digits are significant. किसी ने कोई measurement लिया, उसमें जितने भी non-zero digits हैं, वो सभी significant माने जाते हैं. आपको ऐसे सोचना है, एक साइंटिस्ट है जिसने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके हमें उसका रिपोर्ट दिया, हमें उसका रिजल्ट दिया कि ये भाई फिजिकल क्वांटिटी इतनी है, इसकी मेजर्ड वैल्यू इतनी है. तो हम उसकी रीडिंग देख रहे हैं. उसने कैसे मेजरमेंट किया मैं तो देखने नहीं गया था, मैं तो सिर्फ उसकी रीडिंग देख रहा हूं और सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि यार इसने किस तरह का मेजरमेंट किया है, हाउ प्रिसाइज वाज हिज इंस्ट्रूमेंट, हाउ गुड इज दिस मेजरमेंट. सो आई विल काउंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. उस मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट, दे ऑल आर मीनिंगफुल, एंड ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो मीनिंगफुल, they are significant. For example, suppose there is a gold ring, सोने की एक अंगूठी ऐसा मान लो, एक रिंग है, उसको तुमने किसी बहुत बढ़िया प्रिसाइज बैलेंस के ऊपर उसका मास पता किया, किसी साइंटिस्ट ने मेजर किया,
जिसको हम नहीं जानते, उन्होंने रिपोर्ट किया, लिखा रहता है ना भाई, हम ये गोल्ड रिंग खरीदने जाते हैं तो इसके साथ एक टैग होता है और उस टैग पे उसका वेट लिखा होता है। आप ध्यान देना अगली बार, उस टैग पे लिखा है 5.026 ग्राम। अब इसको देखकर मैं क्या समझूं, इसको देखकर मैं क्या समझूं, क्या इस गोल्ड रिंग का वजन एग्जैक्टली 5.026 ग्राम है? जी नहीं। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट, मैं समझ जाता हूं कि अच्छा 5 ग्राम से तो ज्यादा है, ये कंफर्म। 5 इज अ डिजिट जिसके बारे में मेजरमेंट करने वाला आदमी एकदम कॉन्फिडेंट है, 5 तो सही है। ये 0 भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, जिसने मेजरमेंट किया है उसने ऐसी स्केल यूज की है कि यहां पे अगर 3 होता तो वो 3 लिखता। 0 भी तो एक डिजिट ही है, 0 आया तो क्या करेगा। 5.022 के बारे में भी उसको कोई डाउट नहीं है, उसे पक्का पता है, उसके स्केल ने उसे बताया कि ये जो रिंग है इसकी वजन 5.02 ग्राम से तो ज्यादा ही है। हाँ, 6 को लेके उसे थोड़ा डाउट है, वो थोड़ा असमंजस में है कि ये 5 है कि 6 है कि 7 है। तो उसने बेस्ट पॉसिबल गेस किया कि 6 लगता है मुझे, और उसने लिखा 5.026 ग्राम। तो जब मैं ये गोल्ड रिंग परचेस कर रहा हूं तो मेरे मन में ये होना चाहिए कि हो सकता है ये गोल्ड रिंग 5.025 भी हो, 5.027 भी हो। तो अब अगर किसी ने बाद में मुझे और प्रिसाइज मेजरमेंट करके बताया कि अरे तुम्हें गोल्ड रिंग देने वाले ने ठग दिया, इसकी एक्चुअल वजन तो इतनी है, तो मैं उस पर कोर्ट केस नहीं कर सकता हूं भाई। वो एक फिजिक्स वाले को बुला लेगा और फिजिक्स वाला बोलेगा हाँ ठीक है, उसने ठीक बताया, उसने कहा तो कि ये 6 इज द डाउटफुल डिजिट और ये 5 हो सकता है। तो आई परचेज दिस रिंग नोइंगली कि ये 5.025 हो सकता है, 5.025 हो सकता है, 5.026 हो सकता है, 5.027 भी हो सकता है, 6 से ज्यादा 6.5 भी शायद हो सकता है, भगवान अगर बताएं तो। सो डिपेंड्स, राइट। If a measurement has been reported like this, how many significant digits are there? We will say that there are 4 significant digits here. Number of significant digits in this measurement is 4. All non-zero digits are significant, and if there is a 0 occurring between 2 non-zero digits, then that particular 0 is also counted as significant digit. So there are overall 4 significant digits in this particular measurement. The next rule is, if the value is less than 1, that means if there is a fraction, if the measured value is less than 1, then all zeros before the first non-zero digit are not significant. All zeros before the first non-zero digit are not significant. Here is the example. ये जो गोल्ड रिंग थी, सेम गोल्ड रिंग, इसकी मास है 5.026 ग्राम. Suppose I wish to convert it into kilogram. 1000 से डिवाइड कर दूंगा, it will become 0.005026 kilogram. So if I express the mass of this same ring in kilogram, then it will become 0.005026 kg. So अगर ये रूल नहीं होता, ये रूल नंबर 3 नहीं होता, तो एक आदमी क्या सोचता कि इसमें तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वो शायद ऐसे काउंटिंग करता 1 2 3 4 5 6 7, वो बोलता बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट है, ये तो 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। जी नहीं, ये मेजरमेंट करके ये जीरोज आए हैं क्या? क्या ये जीरोज मेजरमेंट में पढ़े गए हैं? नहीं, ये तो यूनिट चेंज करने की वजह से आए। तो यूनिट चेंज करने की वजह से अगर एक्स्ट्रा जीरोज ये आ रहे हैं तो इनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं मानते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट वो हैं जो मेजरमेंट के दौरान मैंने पढ़े, वही मीनिंगफुल है। तो किसी भी डेसिमल वाले नंबर में ये जो लीडिंग जीरोज हैं, शुरू के जीरोज हैं, नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले जीरोज हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते हैं। हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये यूनिट चेंज करने की वजह से आए। तो इस मेजरमेंट में भी हम इनको नहीं गिनेंगे 1 2 3 4, और हम कहेंगे इस मेजरमेंट में भी 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। दैट मीन्स आप अपने रिजल्ट को ऐसे लिखो या वैसे लिखो, मेजरमेंट तो वही है, आपने 4 ही डिजिट पढ़े हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही माने जाएंगे। ठीक है, जस्ट बाय चेंजिंग द यूनिट्स वी कैनॉट क्लेम दैट मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। ठीक है, आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन डेसिमल नंबर,
नंबर विच डज नॉट हैव एनी डेसिमल, वो ऐसे नंबर में लास्ट के जो जीरोज हैं, ट्रेलिंग जीरोज, एंड में जो जीरोज हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसी गोल्ड रिंग के मास को हम माइक्रोग्राम में एक्सप्रेस कर दें, वो ग्राम में था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 ग्राम में था ना, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी माइक्रोग्राम में हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये 5.026 था, उसको हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 502600, सो मेनी माइक्रोग्राम। अब क्या इसको देखकर हम ये कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? आंसर है नहीं। ये जीरोस क्या मेजरमेंट में आए हैं? ये जीरोस क्या मेजरमेंट की वजह से यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या इन जीरोस को रीडिंग लेते समय पढ़ा गया है? आंसर है नहीं, इन जीरोस को तो नहीं पढ़ा गया। पढ़ने वाले डिजिट जो थे वो तो यही थे, तो अभी भी इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो ऐसे नॉन डेसिमल नंबर में जो लास्ट के ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि ये सब यूनिट चेंज की वजह से यहां पे आए हैं, रीडिंग में तो नहीं आए हैं। अब आपके मन में जरूर दौड़ रहा होगा कि नहीं भाई, अगर मेरे पास कोई बहुत बढ़िया स्केल हो और सही में ये रीडिंग आई है, ये 000 ही आया है, तो दुनिया वाले तो मानेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे आपका स्केल तो बेकार है, उसमें तो आप 4 ही डिजिट तक पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा है 60 डिजिट तक, पर कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट ही 0 आ गए। क्या लास्ट के 3 डिजिट 0 नहीं हो सकते किसी मेजरमेंट में? हो सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? तब आप छटपटाएंगे कि मैं दुनिया वालों को कैसे बताऊं कि मेरा मेजरमेंट बड़ा एक्यूरेट है, मैंने कमाल के स्केल से मेजरमेंट की है, उसमें 7 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। आप लिख ऐसे रहे हो, सब लोग बोलते हैं कि 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, आप चिल्लाते हो कि नहीं 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहां पे अगर 9 होता तो मेरा स्केल 9 पढ़ लेता, अब 0 ही आया तो मैं क्या करूं? तो आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब आप क्या करेंगे? तब आप अपने मेजरमेंट को इस तरीके से नहीं लिखते, आप अपने मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। आते हैं उस पर एक और रूल, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन। द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल वाला नंबर है तो लास्ट के जितने जीरोस हैं वो सब सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। जैसे किसी गोल्ड रिंग की मास इतनी थी, जो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया। अब मान लीजिए एक दूसरी रिंग ली मैंने जिसकी मास थोड़ी कम है, तो स्केल तो हमारा ऐसा है कि 5.026 पढ़ सकता है, तो 5.021 भी पढ़ सकता है। तो थोड़ी हल्की गोल्ड रिंग है, उसकी मास 5.021 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। एक थोड़ी और हल्की रिंग है, मान लीजिए उसको मैंने तौला, उसी स्केल पे उसकी मास आई 5.020। गौर किया जाए, जी हाँ, वो दैट स्केल इज केपेबल ऑफ रीडिंग अप टू 4 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वो पढ़ सकता है, वो स्केल ऐसा है, एग्जाम्पल से लग रहा है। अब वो आखिरी का डिजिट 0 आया तो स्केल क्या करे? 0 हो सकता है। तो इस रिपोर्टेड वैल्यू को देखकर अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि नहीं यहां पे तो 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो गलत हो जाएगा ना। एक्चुअली स्केल तो वही यूज किया गया है। रिंग थोड़ी भारी थी तो स्केल ने 6 पढ़ा, थोड़ी हल्की थी तो 1 पढ़ा, थोड़ी और हल्की हो गई तो स्केल ने 0 पढ़ा। वो 0 रीडिंग में आया है, वो 0 एक्चुअली रीड किया गया, रिकॉर्ड किया गया है। हाँ ठीक है, वो डाउटफुल है, बट वही बेस्ट एस्टिमेट है, लास्ट डिजिट डाउटफुल है, बट वो रिकॉर्ड में आया है, रिकॉर्डिंग की गई है, उसको पढ़ा गया है। देन दिस 0 हैज टू बी सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि वो पढ़ के आया है, वो ऐसे ही यूनिट चेंज वगैरह की वजह से नहीं आया। तो सारे डेसिमल वाले नंबर में लास्ट के जितने भी जीरोस लगते हैं, अगर मैं कहीं पे ऐसा लिख दूं तो दुनिया वाले क्या समझेंगे पता है? वो समझेंगे कि इसके पास कोई कमाल की स्केल है जिसमें वो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ लेता है, वैसा ही समझा जाएगा। इन सभी जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा अगर ये डेसिमल वाले नंबर में लास्ट में आते हैं। तो डेसिमल वाले नंबर में लास्ट में आने वाले जीरो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। दिस इज द लास्ट रूल बेसिकली, ना द साइंटिफिक नोटेशन। जैसा मैंने कहा कि कंफ्यूजन हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट, वी ऑलवेज राइट 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल। डेसिमल के पहले एक ही डिजिट लिखते हैं और उसके बाद 10 की पावर में पूरे नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं। सपोज किसी टेबल की लेंथ 500 सेंटीमीटर है,
ठीक है, अगर आप ऐसे लिख के आ जाओगे 500 सेंटीमीटर, तो लोग क्या समझेंगे? जिनको हाथ में ये पर्चा आएगा कि तुमने टेबल की लेंथ मेजर की है, वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ये बगैर डेसिमल वाला नंबर आपने लिखा है, ये लास्ट के जीरोस तो वो सिग्निफिकेंट मानेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। और तुमने बहुत अच्छे स्केल से मेजरमेंट किया था, अगर टेबल की लेंथ 505 होती तो भी तुम बता देते, अब 500 ही आई तो तुम क्या करोगे? अब तुम छटपटाने लगे कि अरे मैं 500 लिखता हूं तो सब लोग समझते हैं कि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, जबकि इसमें तो यार 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर टेबल की लेंथ 515 होती तो मैं 515 लिखता, मेरा स्केल ऐसा है कि वो मेजर कर सकता है टू 1 सेंटीमीटर। पर अब आपकी लेंथ 500 आ गई, अब आप क्या करेंगे? कैसे दुनिया वालों को बताएंगे कि भाई ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं 3 है? तो ऐसे नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं, 5.00 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। देखिए 5.00 डेसिमल वाले नंबर में पीछे के जितने जीरोस हैं सब सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। अब लोग समझेंगे कि 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और अब आप इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दीजिए। 10 की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की काउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिग्निफिकेंट डिजिट यहीं पे काउंट किए जाएंगे। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगानी है और फिर पूरे नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है। इसी लेंथ को अगर मैं मिलीमीटर में लिखना चाहता हूं, इसी लेंथ को अगर मैं मिलीमीटर में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? 5.00 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। इस 10 की पावर 2 और 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 5.00 लिखा है, यहां पे भी 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट। इन दोनों मेजरमेंट में, इन दोनों मेजरमेंट नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा, और अगर ऐसे लिखेंगे तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप एक्सपेरिमेंटर बेस्ट जज हैं, आपको पता है कि हमने कौन कौन से डिजिट्स को पढ़ के लिया है, यूनिट चेंज की वजह से नहीं आए, हमने पढ़ा है, रीड किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये जीरोज आपने पढ़े हैं तो आपको अपने आंसर को ऐसे लिखना चाहिए, आंसर मींस मेजरमेंट को ऐसे लिखना चाहिए, isn't it? I hope you have understood this. ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इनका आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इन सभी मेजरमेंट्स में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ये खुद को बता दीजिए आप, ठीक है? एक और क्वेश्चन ऐसा है कि मेरी क्लासरूम में 63 स्टूडेंट्स हैं, मैंने किसी को कहा कि काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, he said that number of students in the class is 63. Now in this reported measurement, this is a measurement 63. In this reported measurement, how many significant digits are there? 2. Now there are infinite number of significant digits. अगर मैं ऐसा लिख दूं, in my class there are so many students, is it wrong? No, there are 63 students. क्या मैं अगला डिजिट जानता हूं? हाँ, 0 ही है। मुझे पक्का पता है कि इतने स्टूडेंट तो नहीं है मेरे क्लास में, है क्या? मुझे पता है कि सारे डिजिट्स जो आने वाले हैं सब तो 0 ही हैं, जितने भी लिखवा लो मुझसे तुम। हाउ कैन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी 63.001 और 63.1? सो ऑब्वियसली आई नो ऑल द डिजिट्स, आई नो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस मेजरमेंट। मैं कितने डिजिट पढ़ के बता सकता हूं? इनफाइनाइट। ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट, ये एक एग्जैक्ट नंबर है, इसमें एरर है ही नहीं, इसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जानते हैं। तो ऐसे मेजरमेंट में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? आंसर इज इनफाइनाइट। ओके, दिस इज अ वेइंग स्केल, नॉर्मल बाथरूम स्केल, आई डोंट नो आपको स्क्रीन पे कितना क्लियर दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज अ नॉर्मल वेइंग स्केल, और इस स्केल को यूज करके तुम किसी का वजन लेते हो। सो हाउ मेनी significant digits could be there in your measurement? The question is, how many significant digits could be there in your measurement if you are using this scale? How many significant digits could be there in your measurement? More than one correct type क्वेश्चन है ये। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं आपके मेजरमेंट में अगर आपने ऐसा स्केल यूज करके किसी चीज का वजन किया? अगर आपने किसी छोटे बच्चे के वजन को लिया है तो हो सकता है बच्चे की वजन मान लीजिए बहुत छोटा 8 ही kg है,
8 kg के आसपास है। तो ये जो लाल वाला पॉइंटर है हमारा, ये पॉइंटर कुछ ऐसा आ जाएगा, इसमें जैसा दिख रहा है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये लाल पॉइंटर जो है ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक बनाया मैंने। ये जो लाल पॉइंटर है ये कुछ ऐसा आ गया। उस बच्चे को इस स्केल पे रखने से अब आपको इसकी रीडिंग लेनी है। आप बोलेंगे शायद ये यार 0 kg या 10 kg, 0 से 10 के बीच में देखिए 10 खंड है, मतलब 1-1 किलोग्राम, ये सभी किलोग्राम यूनिट में है। ये 0 से 130 तक मेजर कर सकता है किलोग्राम में, यहां लिखा है मान लो किलोग्राम। तो अभी जो रीडिंग, अगर ये स्केल ऐसे कांटा ऐसे दिख रहा है, तो मैं बहुत बढ़िया जज हूं, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा कि शायद 9 kg, राइट, 9 kg, 9.1 लिख दूं क्या? बिल्कुल 9 में ही मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। थोड़ा इधर से और इधर से देखने में कई बार लगता है कि 8 के करीब है। आपको नहीं हो रहा है तो नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि 8 से ज्यादा है पर 9 से कम है, तो उन्होंने एक गेस किया 8.5। ये चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि 8 से तो ज्यादा दिख रहा है मुझे। तो 8 इज द कंफर्म डिजिट, 5 इज द एस्टिमेटेड डिजिट, डाउटफुल डिजिट। ठीक है, आपने बेस्ट एस्टिमेट किया है 5, दिस कुड बी रॉन्ग, चलेगा। एक डाउटफुल डिजिट लिखना अलाउड है। तो अगर आप बहुत अच्छे से इसको केयरफुली देख के एकदम कॉन्फिडेंट हो कि 8 से ज्यादा है, 9 से कम है, तुमने गेस किया 8.5, चलेगा। 8.6, 8 जो भी गेस किया चलेगा, राइट। लेकिन मैं तो नहीं कॉन्फिडेंट हो पा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि 9 है कि 8 है, मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। तो अगर ऐसा मैं हूं तो ऐसा ही हूं, क्या कर लोगे? तो मैं 9 ही लिखूंगा। क्यों? The number of significant digits or uncertainty in a measurement depends on precision of the instrument, skill of the experimenter, and the experimental condition. Experimental condition means what? अब आप स्केल के ऊपर खड़े और खुद ही देख रहे हो, तो दिस इज ए डिफरेंट कंडीशन, यू आर लुकिंग वर्टिकली डाउन एट स्केल। और एक हो सकता है कि छोटा बच्चा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो तो नहीं देखने वाला, बच्चे को आपने स्केल पे रख दिया और आप साइड से ऐसे देख रहे हो स्केल को ऐसे, तो now there is a good chance of having some parallax error, if you understand what parallax is. So this is a different experimental condition. So this can cause error. Yes. So ultimately it is the experimenter who will decide what to write. But the fact is that somebody may write it as 9, somebody may write it as 8.5. Okay, in this case there is one significant digit, in this case it is two significant digits. Fine. Now suppose आप में से कोई स्टूडेंट इस स्केल पे आता है, तो ये पॉइंटर यहां कहीं चला गया, राइट, ये पॉइंटर यहां कहीं चला गया। सो नाउ द रीडिंग कुड बी 64, 63 से ज्यादा लग रहा है, 64 के आसपास लग रहा है। डोंट नो वेदर इट इज एग्जैक्टली 64 और नॉट, बट ठीक है, कोई आदमी इसको 64 रिपोर्ट कर सकता है, कोई 63.8 एक गेस मार सकता है, चलेगा। तो दिस इज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब कोई बहुत भारी आदमी अगर आ गया इस पे, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, तो ये ऐसे चला गया। तो इसमें 114 केजी कोई बोल सकता है, 114 केजी। और जैसा मैंने कहा कि कोई बहुत बढ़िया से एकदम वर्टिकली देख रहा है, ही इज श्योर कि पैरेलैक्स एरर नहीं है, ही इज कॉन्फिडेंट कि नहीं यार 14 से तो ज़्यादा है, 14-15 के बीच में कुछ है, तो वो 114.5 बोल सकता है। सो व्हाट डू यू सी? यूजिंग दिस स्केल आई कैन हैव 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट एज वेल एज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, but I can never have 5 significant digits. Is it possible to have 5 significant digits using this scale? At the max, I can have 4 number of significant digits. I cannot write weight of something as 114.569 kg. So the number of significant digit in a way, if you have recorded a reading properly and I am looking at the reading, in a way this reading tells me what kind of scale you might have used. ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? तो चलिए
इस डिस्कशन को आज यहीं पे रोकते हैं। किसी और दिन किसी और वीडियो में अनसर्टेनिटी और एरर्स के बारे में अलग से बात करेंगे। बाय बाय।